This is Pranav Goa Thakurta from Edu TV. Today, we are with Dr. Joshi, Dr. Neeru Joshi. She's a principal, BBPS, Modinagar, Ghaziabad. She's also the director of Surya Academy, Hapur. She's the chief editor of Wow India e-magazine. She's the national head for NRPS, SRPS in Be the Change. She's president, Modinagar, Muradnagar, Sahoday, CBSE. She's also a famous motivational speaker. Ma'am, welcome to our show. Yeah, thank you. Thank you so much, Pranav ji. Thank you for calling me on such a wonderful platform, Edu TV. Ma'am, thank you so much. It's a pleasure is ours, ma'am. Ma'am, as after 3 decades, this new education policy 2020 has been launched. I think it's a very modern policy. What are your views on the same? Yes, ma'am. Pranav ji, because it was a long-awaited policy, right? Everyone was waiting because, 3 decades, approximately a long period. And you know that, it is a technological world. So globally, everyone is moving ahead with the supersonic speed. But when we speak about the education policy, over 3 decades, we were there with the same policy, right? A lot of amendments we were expecting for a long time. So thank you so much for the policy maker, first of all, that because each and every word, Pranav, because I've gone through the policy, each and every word in this, that is only for the growth and development, only for the growth and development and holistic development, I must say, and honing skill of the students of the country, right? So I start from, first of all, because it is universalization of education. If we see, we are taking everybody in Hindustan, yes, that Bharatvarsh and all students, right, all children, they must cover in this by year 2030. The first beauty of the policy कि सारे का सारा हमारे हिंदुस्तान का जो बच्चा है by 2030 is about to be come into this, which is the gross enrollment ratio. So the first agenda, I must say, that is wonderful, right? A lot of appreciation. Second, we need to come, that is when we speak about higher education, because most of the students after class 12, they drop out. We have seen that, right? A lot of reasons are there. If we see the demographics and all, the migrations and everything, if we count, so we have seen that even when we talk about 2018 year, right? So it was approximately higher education was about 28%, right? So it is the gross enrollment ratio I'm speaking about. So that is by 2025, 50%. आप देखिए, ठीक है. सो ये जो चीज है कि पूरे हिंदुस्तान को आप एनरोल करना एजुकेशन के लिए, तो सबसे प्राइम ऑब्जेक्ट हिंदुस्तान का क्या है? वो कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, राइट? तो अगर आपका एक एक बच्चा आपका पढ़ा लिखा होगा, हमें हर लेवल पे देखना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे देखना पड़ेगा, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे देखना पड़ेगा, हायर एजुकेशन लेवल पे देखना पड़ेगा, फिर हम ग्रोथ की बात करते हैं. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है दैट वी हैव सीन दैट most of the degree holders sometimes are without job, and then we say कि government कुछ नहीं कर रही है, government कुछ नहीं कर रही है. We are here to blame the government. And when we see the policy, skill education and vocational education have been given 100% weightage. We have seen that कि स्किल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बात की गई है. हमने कभी नहीं सोचा था कि इंटर्नशिप 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में इंटर्नशिप नाम का भी वर्ड आएगा. और आप देखिए पॉलिसी की खूबसूरती, इंटर्नशिप फॉर द स्टूडेंट ऑफ 6, 7 and 8 स्टैंडर्ड फॉर 10 days in a year. तो अपने आप में जब बच्चा स्किल एजुकेशन पे काम करता है, अपने हाथ से कोई चीज 10 दिन के लिए करेगा, राइट, स्किल एजुकेशन पे काम करेगा, तो खुद वो आगे जाकर अपना कोई स्टार्टअप कर सकता है, कोई बिजनेस कर सकता है. और आप अगर कोई बिजनेस सेटअप करते हैं प्रणव जी, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन आप सोचिए अगर आप स्किल्ड हो गए, आप देखिए पॉलिसी मेकर्स ने कितना दिमाग लगाया कि आपने 6, 7, 8 के बच्चे को भी आपने स्किल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग दे दी है. आप सीबीएसई का पूरा प्लीज ये देखिए कि कितने सारे वोकेशनल स्किल एजुकेशन वो आपके 6, 7 and 8 स्टैंडर्ड में आ चुके हैं. तो तब से आपका बच्चा, दूसरी बात आप एज ग्रुप्स तो देखिए किस तरीके से 3 to 5, 5 to 8, 8 to 11, 11 to 14, 14 to 18 जो एज ग्रुप को भी डिवाइड किया गया है, और जिस तरीके से 5, 3, 3, 4 को डिवाइड किया गया है, दैट फर्स्ट 5 years
foundation level, then elementary level, and then the आपका secondary, senior secondary level. So you just see the beauty of the policy कि आप सिर्फ एक education का stamp नहीं लगा रहे हैं कि आपने 100% लिटरेसी कर दिया. इस पॉलिसी का एजेंडा सिर्फ 100% लिटरेसी नहीं है प्रणव जी. इस पॉलिसी का जो मेन ब्यूटी है, एसेंस है, दैट इज टू स्किल ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ भारत. वेरी गुड. और हर व्यक्ति अगर ट्रेंड स्किल्ड होगा तो हम जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं प्रणव जी, तो वो अपने आप होगा. सारी चीजों को कनेक्ट करके देखिए, आप स्किल्ड हैं तो आत्मनिर्भर बन गए, भारत के व्यक्ति हैं तो आप आत्मनिर्भर भारत को आपने बना दिया. ठीक है, आपने खुद किसी चीज का स्टार्टअप किया, आपने खुद का भी रोजगार तय कर लिया, आपने उसमें हो सकता है 50 to 80 to 100 लोगों को भी आपने इन्वॉल्व करके उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट दे दिया. प्रॉब्लम अब तक प्रणव जी इस पॉलिसी जुलाई से पहले की अगर हम बात करें, क्या प्रॉब्लम थी? डिग्रीज थी, डिग्री होल्डर्स थे, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड थे और वो दोष देते थे, ब्लेम करते थे सरकार को. अरे बाबा, विदाउट स्किल, देखिए टैलेंट की कमी, टैलेंट को तो आज भी जो डिजर्विंग है प्रणव जी, उनको जॉब की आज भी कमी नहीं है. प्लीज, आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल क्लियर ये बात बोल रही हूँ. डिग्री पे नहीं होता है कि आपके पास एमए, ये इतनी सारी डिग्रीज हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप गवर्नमेंट को दोष दे रहे हैं. क्या आप डिजर्विंग है? क्या आप एलिजिबल है? क्या उस जॉब के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है, जो स्किल आपके अंदर होना चाहिए, क्या आप उस चीज में एंडाउड है? तो वी हैव टू सी टू दैट. दूसरा, अगर हम इसकी ब्यूटी की बात करते हैं प्रणव जी, परख, PARAKH, जो नेशनल स्टेट बॉडी सेटअप जो किया गया है, यानी परफॉर्मेंस की बात मैं करूं, अगर असेसमेंट की बात अगर मैं करूं, P से परफॉर्मेंस, A से आपका असेसमेंट आ गया, R से आपका रिव्यू आ गया, राइट. फिर लास्ट के AKH की बात करते हैं तो वो है एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट. तो आप ये देखिए, जो नेशनल सेटअप बॉडी जो परख सेटअप करने का है, वो भी अपने आप में, मतलब एक एक एवरी इसमें बोलना चाहिए. अच्छा, बाल भवन जो खोलने की बात की गई है, every state has given a power to set up बाल भवन्स. अब वो बाल भवन्स क्यों खोले जा रहे हैं? आप देखिए, उसका एक ही एजेंडा है प्रणव जी, आर्ट को, आर्ट एजुकेशन को स्प्रेड करना, करियर एजुकेशन के लिए लोगों को अवेयर करना, इवन प्ले जोन और रिक्रिएशन के लिए भी लोगों को करना. तो ये भी देखिए जरा, तो परख हो गया, बाल भवन्स हो गया, जो सामाजिक चेतना सेंटर्स, जितने भी फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं स्टेट में, बॉडीज है, फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उनको जो एक सामाजिक चेतना केंद्र बनाने की बात की गई. तो आप ये देखिए कि कितना कुछ इसमें किया गया. दूसरा, हम टीचर्स की बात करते हैं, टीचर्स बीएड प्रोग्राम की बात करते हैं. आप कहीं से भी बीएड की डिग्री लेकर आ जाते हैं, फिर आप कहते हैं आप स्किल्ड टीचर बनने चाहिए क्योंकि बीएड का डिग्री आपके पास है. मैं आपको नॉन बीएड दिखा देती हूँ प्रणव जी, हु आर एक्सीलेंट टीचर्स. फिर बात आती है कि आप खुद कितने स्किल्ड हैं. उसके लिए भी अब हर कोई बीएड का कोर्स ऐसा खोल के नहीं बैठ सकते हैं. तो देयर इज अ नेशनल बॉडी आल्सो, जो कहना चाहिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर ट्रेनिंग, राइट. उस पे फोकस किया जा रहा है, राइट, कि टीचर्स का क्वालिटी, स्कूल का क्वालिटी एंड एक्रीडिटेशन पे बाय SCERT वो काम किया जा रहा है. NCERT अलग काम कर रहा है एलिमेंट्री केयर, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए. तो आप देखिए, ये तो मैं स्कूल लेवल की बात कर रही हूँ प्रणव जी. तो आप ये देखिए, बच्चे को इंटर्नशिप, मैं पहले भी अभी मैंने बोला, इंटर्नशिप हमने पहले कभी वर्ड नहीं सुना था. हम हमेशा सुनते थे रिसर्च के टाइम पर, या बच्चे ने बीटेक के बाद इंटर्नशिप किया, या जो MBBS कर रहे हैं वो इंटर्नशिप कर रहे हैं. आप देखिए 6th 7th 8th का बच्चा अगर इंटर्नशिप कर रहा है, तो बच्चों को एक तरीके से ये पावर देना, ये कॉन्फिडेंस देना, एक कॉन्फिडेंस देना. दूसरा, लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, मदर लिंगुआ को जो रिस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं. अच्छा, कितनी लैंग्वेजेस हैं प्रणव जी? क्योंकि मैंने डीपली इसको पढ़ा है और जैसे मैंने बताया, मतलब ओवर 100 लैंग्वेजेस हैं. लोकल लैंग्वेजेस की बात करें जो डिसअपियर हो गई हैं. अगर सोचिए धीरे धीरे सारी लैंग्वेजेस डिसअपियर हो जाएंगी तो हमारी कितने सारे स्क्रिप्चर्स या कितनी वैल्यूएबल बुक्स होंगी दैट नो वन कैन रीड दैट आफ्टरवर्ड्स. अगर लैंग्वेज ही सिखाने और सीखने के लिए नहीं होगा तो उस लैंग्वेज में जो वो लिखा हुआ है ना प्रणव जी, वो भी आपका एक्सटिंक्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा. उन लैंग्वेजेस को भी जिंदा रखने की, जो उसमें जो प्राण फूके गए हैं देश की संस्कृति को बचाने के लिए, ये इसकी बहुत बड़ी ब्यूटी है कि हिंदी को भी बचा के रखना है, मदर लैंग्वेज को. और जिस भाषा में हो सके बच्चों को एज 8 तक की ट्रेनिंग देनी है, यानी जब तक बच्चा 8 साल का नहीं हो जाता, जिस लैंग्वेज में बच्चे को वो चीज समझ में आती है, उस लैंग्वेज में उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी है. तो आप देखिए जरा,
फिर भी उसके बाद भी अगर कोई रिजेक्ट NEP #2020 करता है तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि हम किसी भी चीज को विरोध में जाकर उसका एक बहुत बड़ा सोचते हैं कि हम लोगों ने वो एक जनमत इकट्ठा कर लिया विदाउट गोइंग थ्रू, और उन लोगों से पूछा जाए कि प्लीज आप NEP के बारे में जरा 5 लाइन्स बताइए, पॉइंट नंबर 3 बता दो या 2.6 में क्या लिखा है ये बता दो, सर आई एम सॉरी प्रणव जी वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ ये सिखाया गया है जैसे मान लीजिए अपोज कर रहे हैं, दैट्स इट। तो ये चीज है और स्कूल के लिए बहुत बेनिफिटेड है। जैसे क्लास 3, 5, 8 की अगर हम बात करें, तीनों के लिए स्कूल एग्जामिनेशन होंगे प्रणव जी, लेकिन आपकी एक अथॉरिटी सेटअप किया जाएगा, वो अथॉरिटी ये एग्जाम लेगी, यानी हर लेवल के बाद एक नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए समझ लो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। तो आप देखिए वो फीलिंग बच्चे के अंदर 3rd क्लास से ही आना शुरू हो जाएगा, ग्रेड 3 आपका, ग्रेड 5, ग्रेड 8, 10, 12 is about to be the same, the board classes as usual, the tradition is there in India. So wonderful Pranav, I think the all stakeholders, they need to work together to make this beautiful NEP documented file a real reality, I must say, and dream will come true only when we all work together, है ना। हम ये नहीं उसको खराब करने के लिए काम करेंगे, पॉलिसी बनाई जाती है उसको सक्सेसफुल सबको मिलके करना पड़ता है। परिवार में एक छोटा सा भी फंक्शन होता है ना सर, अगर कोई 2 लोग भी अगेंस्ट काम करते हैं या मन से काम नहीं करते हैं, वो फंक्शन तक फ्लॉप हो जाता है, मानते हो ये? इसका मतलब देश की जब बात आती है सर, तो कोई कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, पार्टी काम नहीं करनी चाहिए। देश माने सर देश होता है, भारतवर्ष माने भारतवर्ष, भारत का यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन यानी भारतवर्ष का, वो किसी रिलीजन का मोहताज नहीं है सर। तो मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगी दैट ऑल वी नीड टू वर्क टुगेदर एंड इट इज अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट। और शॉर्टकमिंग सर हर उसमें होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका प्रॉपर एक फॉलो अप होता है एग्जीक्यूशन के बाद, फिर कोई कमियां होती हैं सर उसको फिर दूर किया फाइन जाता ट्यूनिंग है, करी जा सकती है आगे, बिल्कुल वो किया जा सकता है। लेकिन हमें इसको अगर खुले दिल से हम इसे देखें सर, लैंग्वेजेस से लेके, इंटर्नशिप से लेके, बीएड प्रोग्राम से लेके, एक्रीडिटेशन से लेके, टीचर्स क्वालिटी इंप्रूव करने से लेके, बच्चों को स्किल देने से लेकर, ऐसी कौन सी चीज है सर इसमें से छोड़ी गई है? और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया, दैट इज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, जो सिर्फ एक खाना पूर्ति नहीं है, एक सुपरफ्लुअस काम नहीं है कि सिंपल ठीक है लिटरेसी होना चाहिए, दैट्स इट, स्किल पे काम करना पड़ेगा और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करना पड़ेगा। और मुझे लगता है हर भारतीय का सर ये सपना होगा आत्मनिर्भर भारत बनने का, जो सबको मिलकर साकार करना है। I think that was a very energetic, very useful speech by you, ma'am. And I'm very happy and I agree with you on everything, whatever you have said. I to say to all my viewers and spectators that Edu TV is doing excellent work, because I have seen them coming up with always with the burning issues, taking reviews from all these stakeholders. When it was the introduction of the artificial intelligence, it was only the Edu TV who was there talking, one-to-one principles, going one-to-one school. What is the impact of the AI at the school level? What is the career growth in that? How teachers, how human resource can be of the important asset to this? And now you see that even on NEP 2020, again they are there with coming up with lot more educators, their opinions. So they always address the questions which I think running around in the mind of every Indian. So solution is there with Edu TV all the time, I must say that. So watch Edu TV. And Pranav, thank you so much.